Dear students, today we will discuss the combination of cell. You know that cell is a device which is used to measure the potential difference between the two terminals. Here combination of cell. Here suppose two cells EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 are connected. Between A and B, cell EMF E1 and resistance is R1. Between B and C, cell EMF is E2, internal resistance is R2. We know that V is equal to E minus IR. Between A and B, VA minus VB, it is equal to E1 minus IR1. ध्यान में रखना, IR1. इसी तरह से IR2 VB माइनस BC ऐड कर दें अगर हम, तो A और C के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस BC इट इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस BB माइनस BC. दोनों ऐड हो जाएगा VA माइनस BB प्लस VB माइनस BC. VB कैंसिल, VA माइनस BC अगर ऐड कर लें तो हमारे पास हो जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. सो VA माइनस BC इट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2. सो VA it is equal to E minus IR. Here we see that the equivalent resistance, here V is equal to E minus IR. If we compare, we find that E is equal to E1 plus E2 and R is equal to R1 plus R2. It means in series combination, net EMFs are added and net internal resistance are also added. Thus in series combination, where we find that the EMF and internal resistance is added. Parallel combination, here we have to see what happens in parallel combination. Here suppose between A and B, two cells EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected. Here R1. Potential difference between A and B, VA minus VB, it is equal to E1 minus IR1. मान लो इस सेल में I1 करंट दिया, सेल E2 ने I2 करंट दिया, तो VA माइनस VB इट इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. सिमिलरली तो हियर VA माइनस VB इज E1 माइनस I1 R1. तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. So what will be the I1? I1 is equal to E1 minus B upon R1. Similarly, VA minus VB for the second cell, VA minus VB it is equal to E2 minus I2 R2. This VA minus VB को V ले लें तो V is equal to E2 minus I2 R2. So I2 it is equal to E2 minus B upon R2. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? नेट करंट क्या हो जाएगा? इसका I1 इसका I2. तो I1 प्लस I2 इट इज इक्वल टू E1 माइनस बी अपान R1 प्लस E2 माइनस बी अपान R2. ऐड अगर कर दें तो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2. I इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2. इसको हम ऐड कर दें तो यही हमारे पास मिलेगा. E1 R1 E1 E2 के एक साथ कर लें और माइनस B1 अपान R1 माइनस B अपान R2, V कॉमन करके 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2. तो V हियर V को इधर ले आएँ तो V1 R1 प्लस R2 अपान R1 R2 इट इज़ इक्वल टू हियर E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 R2 माइनस I. सो V इज इक्वल टू E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 it is into R1 R2 upon R1 plus R2 minus I. इसको उधर ले जाएंगे तो R1 R2 upon R1 plus R2.
तो V इज इक्वल टू R1 R2 कैंसिल आउट, सो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I। हियर हमारे पास हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हियर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर अगर करें तो कंपेयर करें तो E इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो E बाई R इट इज़ इक्वल टू E अपॉन R E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो चला जाएगा ऊपर तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, दिस एंड दिस कैंसिल्ड आउट, तो बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। इसको दो पार्ट में अगर कर लें तो E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, E अपॉन R इट इज़ इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो एक रिलेशन हमें मिल जाता है इस तरह से। Combination for maximum current in series combination, we have to see it a maximum current in series combination. Here, suppose there are n cells connected in series. EMF is E and internal resistance it is equal to R, and let the external resistance is R। तो नेट EMF इन सीरीज n सेल का NE एंड द टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस R प्लस R इट इज़ NR। नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज NR प्लस R, तो R प्लस NR। करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR। अब हम केस फर्स्ट ले लें, अगर इफ़ इंटरनल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, यू हैव टू टेक केयर, इंटरनल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर इंटरनल रेसिस्टेंस, देन व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल R इज ग्रेटर NR, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमारे पास NR को कैंसिल कर देंगे क्योंकि R अगर बहुत बड़ा है तो इस केस में I is equal to NE upon R. It means current becomes N times. And if R is lesser, it means in series combination, series combination is very useful because current become N times. इसीलिए जो टार्च वगैरह में जनरली हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही सेल को कनेक्ट करते हैं। If R is lesser of NR, then I is equal to NE upon R, तो NE upon R। कहने का मतलब ये है कि सिंगल सेल से जो करंट निकलती है, जब हमारे पास करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल से जो चाहे 100 चाहे 100 या 1000 भी ले लें, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है इंटरनल के रेस्पेक्ट में, तो कितना भी अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें, सेल एक के करंट के बराबर, एक ही सेल के बराबर करंट हमेशा मिलेगी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल। सो सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूजफुल फॉर द सेल्स। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, यू हैव टू सी इट हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज there are M cells connected in parallel between A and B, EMF is E, internal resistance is R, current I is drawn from the cells। so internal net EMF A और B के बीच net EMF E ही रहेगा हमेशा। internal resistance it is equal to 1 upon R M upon R। here 1 upon R dash it is equal to 1 upon R, here 1 upon R plus 1 upon R M times, तो M upon R, so R dash is equal to R upon M। net resistance of the circuit
R plus R upon M. Current drawn from the cells I is equal to E upon R plus R upon M. अब इसमें हम देखें अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस देन व्हाट विल हैपन, इट इज़ नेग्लिजिबल. तो I इज इक्वल टू E अपॉन R. तो अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर M सेल्स भी कनेक्टेड हैं, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं. करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल. I इज इक्वल टू E अपॉन R अपॉन M. तो M E अपॉन R. सो करंट बिकम्स M टाइम्स. और अगर यहाँ पे इफ R इज लेसर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे इफ R इज लेसर R अपॉन M, देन I इज इक्वल टू E अपॉन R अपॉन M. तो यहाँ पे M E अपॉन R, मतलब ये इंटरनल एक्सटर्नल तो जीरो हो जाएगा. तो करंट बिकम M टाइम्स. अगर इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल है. मतलब सेल ख़राब अगर हो जाए एकदम बेकार, उस केस में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से कुछ काम कर सकते हैं. तो ये हमारा कंडीशन है मैक्सिमम करंट ड्रा करने की. अब हम लोग एक सीरीज था, पैरेलल था, अब हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसे होता है. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. सपोज देयर आर n cells in series having MFE and internal resistance R, and there are M rows. तो अब between A and B net EMF it is NE and the net internal resistance between of n cells in series, that is NR. So there are M rows. So what will happen? The total internal resistance of the cells 1 upon R dash is equal 1 upon NR 1 upon NR dot M times 1 upon R dash is equal to M upon NR. So R dash is equal to NR upon M. Now the net resistance of the circuit, it is equal to R plus NR upon M. R plus NR upon M. Current drawn from the cells. सब देखेंगे तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स, टोटल करंट, टोटल EMF कितना A और B के बीच NE, टोटल रेसिस्टेंस R प्लस NR अपॉन M. वी कैन राइट हियर I इज इक्वल टू MR प्लस NR, ऊपर चला जाएगा MNE MR प्लस NR. कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, यू हैव टू टेक केयर. कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, द मैक्सिमम करंट, द वैल्यू ऑफ MR प्लस NR. जब मैक्सिमम करंट कब होगी? जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो, मीन्स MR प्लस NR शुड बी मिनिमम. सो MR प्लस NR इट इज़ इक्वल टू रूट MR स्क्वायर प्लस रूट NR स्क्वायर माइनस 2 रूट MR NR. अब हम इसमें क्या किएंगे? इसमें हमने माइनस 2 रूट MR NR ऐड किया, इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया, इतना ऐड कर दिया. इसका फ़ायदा क्या है? ये देखो रूट MR स्क्वायर मनी MR, रूट NR स्क्वायर मनी NR, ये तो इसके इक्वल हो ही गया. और हमने इतना घटा के इतना ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. इससे फ़ायदा क्या हुआ? MR प्लस NR इट इज इक्वल टू रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट MR NR. MR प्लस NR टू बी मिनिमम. ये मिनिमम होने के लिए ये जो इसकी मैक्सिमम की तो सीमा नहीं है, लेकिन किसी होल स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज जीरो. मिनिमम वैल्यू जीरो से कम नहीं हो सकती. सो डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब ये कम से कम जीरो हो, क्योंकि इसकी यह जो वैल्यू है मैक्सिमम इसी पे डिपेंड करती है. ये जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा, और यह इसकी मिनिमम वैल्यू किसी होल स्क्वायर की होती है जीरो. सो MR प्लस NR टू बी मिनिमम, रूट MR माइनस रूट NR का होल स्क्वायर शुड बी जीरो. तो रूट MR माइनस रूट NR होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू जीरो. रूट MR माइनस रूट NR इट इज़ इक्वल टू जीरो. सो MR इट इज़ इक्वल टू NR. तो R इज इक्वल टू NR अपॉन M, ये भी देख लेना. R इट इज़ इक्वल टू NR अपॉन M.
इसका मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट तब होगी जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए। Thus, for the maximum current to be drawn from the cells, external resistance should be equal to the total internal resistance. Thus, we know that I is equal to Ne upon R plus Nr upon M. So, R is equal to Nr upon M, our maximum current. I maximum is Ne upon R plus R. So, I maximum is equal to Ne upon 2R. अब देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इज रिक्वायर्ड टू गेट करंट 1.5 एम्पियर इफ ईच सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस इज 1 ओम और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज 2 ओम। अगर किसी सर्किट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 ओम हो, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम हो और हमें 1.5 एम्पियर करंट अगर फाइंड करनी है, ईच सेल का EMF 1.5 वोल्ट हो, तो कितने सेल की ज़रूरत होगी 1.5 एम्पियर पाने के लिए। तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स मिक्स्ड कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू Nr अपॉन M। R हमारे पास गिवन है 2, Nr अपॉन M, N R 1 है, तो क्या हो जाएगा 2/1, उसको 1 से डाला 2/1 इट इज N अपॉन M। सो N इज इक्वल टू 2M, एक रिलेशन मिल गया। फिर मैक्सिमम करंट की बात करें तो I इज इक्वल टू Ne अपॉन R प्लस R। I की वैल्यू दिया 1.5 एम्पियर, तो हम लिख सकते हैं 3/2 N। E की वैल्यू कितना दिया हुआ है, E इट इज़ इक्वल टू 1.5 मैंने 3/2/4 R प्लस R 2 प्लस 2, तो ये 3/2 कैंसिल आउट, तो N इट इज़ इक्वल टू 4। N की वैल्यू अगर 4 आ गई तो N को यहाँ पुट कर दो 4, तो M इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सेल्स हो जाएंगे कितने, इंटरनल हमारे पास यही सेल हो जाएंगे N 4 सेल्स इन सीरीज एंड देयर आर 2 रोज, मतलब टोटल सेल हो जाएंगे 8। सो द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इट इज़ इक्वल टू MN। ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। और एक से एक चीज़ और बस कर लें हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये लास्ट टॉपिक हमारे पास है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट मीन्स हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। किसी रेसिस्टर में जो करंट फ्लो हो उससे जो हीट पैदा होती है उसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। Suppose current I is allowed to pass through the resistor if W work is done to flow the charge Q through the resistor, then the potential V across the resistor, V is equal to W by Q, so W is equal to VQ, V is equal to IT, Q is equal to IT होता है तो W is equal to VIT, and work done is stored as heat. So H is equal to W, it is VIT, और V is equal to IR, तो H is equal to I square RT, and H I is equal to V upon R, तो H is equal to V square upon R into T। ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के 3 फार्मूले हो जाएंगे। पावर क्या होता है, रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी is known as the power. We know that P is equal to W by T, so W it is equal to H by T, and we know that P is equal to H is equal to VIT upon T, तो VT हो जाएगा VI, and I square RT upon T, TT गया तो I square R, and P is equal to V square upon RT upon T गया तो V square upon R। कहने मतलब पावर इट इज़ इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू I square R, it is V square upon R, so SI unit, and SI unit of this power is what? So here this current electricity chapter is completed. We have to do the numerical questions on it, and this chapter is over. Okay,
थैंक यू।